is the last topic of this chapter. Chemical kinetics is effect of catalyst on rate of reaction. As we have already discussed about these factors in brief, that how concentration affects the rate of reaction, how temperature affects the rate of reaction, and third one is effect of catalyst. Catalyst कैसे reaction को affect करता है, and as you know that catalyst जिसकी जो डेफिनेशन है ये आपको क्लियर हो जाता है कि केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. तो जनरली कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट हियर वी नीड टू फाइंड व्हाई कैटलिस्ट ऑलवेज increases the rate of reaction. Actually, few substances are there which, if they are participating in a chemical reaction, or if they are present in a chemical reaction, they can give some negative effect on the rate of reaction. So those chemical substances are also known as inhibitors or negative catalyst भी है, but that topic is not there in this chapter. Surface chemistry में आपको थोड़ा बहुत negative catalyst पे topic है. So here on the screen, if you can see one you can say graph is there, which is plotted between potential energy or the internal energy of particles and reaction coordinate. Reaction coordinate means the reaction की जो progress है वो show हो रही है. So when reactants are changing into products, one maxima in the curve is observed where activated complex is formed. ठीक है, अभी हमने कल भी discuss किया था कि activated complex जो बनता है that is very much important, because इस activated complex के बनने पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. So you can see here two curves are shown. Red curve shows the activation energy requirement without catalyst. Means if in a particular reaction we are not using any catalyst, then suppose the energy requirement or the activation energy जो हमें additionally provide करनी है इस threshold barrier को overcome करने के लिए, that is shown by the red curve, जो maxima है red वाले curve का. और सपोज उस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट यूज करके उसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया. इन दैट केस वी फाइंड दैट मैक्सिमा ऑफ द कर्व गेट्स लोअर डाउन. ठीक है, बिकॉज अब जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो समवट डिक्रीज हो गई है. दिस इज बिकॉज जो कैटलिस्ट है actually what it does, it participates in chemical reaction and it helps to form an intermediate complex or activated complex having somewhat lower activation energy. Lower activation energy पे ही वो intermediate या जो activated complex है उसको बना देता है खुद participate करके. और अगले step में जब वो activated complex break down होता है, then this you can say catalyst is released back in the reaction. तो ओवरऑल उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता. तो देखकर के मतलब यही लगता है कि इट इटसेल्फ इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, बट इफ यू रिमेंबर एक रिएक्शन हमने देखा था हाइड्रोजन परऑक्साइड का आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट आयोडाइड आयन इटसेल्फ. ठीक है, तो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. इट हेल्प्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक ऑल्टरनेट पाथवे निकाल देता है वो रिएक्शन के लिए जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. और जब बाहर से आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली दैट रिएक्शन विल गेट फास्टर. तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कैटलिस्ट का होता है, एंड दैट इज व्हाई कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय lowering the energy requirement, that is the activation energy of reactant molecules. So a catalyst is a substance that increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Permanent is very important here because it itself is participating in a chemical reaction, but it is actually released back in the next step. Okay, so overall change उसमें कोई नहीं आता. तो no permanent change or chemical change is observed in the catalyst. Catalyst provides an alternative pathway. जो normal pathway है high activation energy वाला, उसके comparatively एक alternate pathway ये provide करता है reaction को, which has lower activation energy requirement for the reactant molecules. And as activation energy requirement gets decreased, so more and more collisions are now effective.
क्योंकि बेसिकली इफेक्टिव कोलिजन्स जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू या एक्टिवेशन एनर्जी से हायर होती है, देन ओनली दोज कोलिजन्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अब एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई है, तो ऑब्वियसली ज्यादा फ्रैक्शन जो होगा मॉलिक्यूल्स का, उनके कोलिजन्स इफेक्टिव हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली रिएक्शन रेट विल इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा कोलिजन्स इफेक्टिव होना मींस more products will formed, and that is what we can say that rate of reaction get increased. So after the reaction, the catalyst can be recovered back when the reaction is over, and it is used again and again in the reaction. So this is how a catalyst increases the rate of reaction. If suppose this question is asked in 2 marks, so you can simply draw this reaction coordinate diagram or reaction profile. उसमें आपको 2 कर्व बस दिखा देने हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी हायर वाला विदाउट कैटलिस्ट और एक लोअर वन, और साथ में 1-2 लाइंस आप मेंशन कर सकते हो. कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे having lower activation energy, hence more and more collisions are now effective because lesser energy is required for that. So more fraction of molecules is now having energy greater than threshold value. Clear? So this is how catalysts affect the rate of reaction. And here is one more topic, last topic you can say, that is collision theory. Actually तो Arrhenius concept भी collision theory पे ही based है, but जो हम kinetics में collision theory पढ़ते हैं वो actually it was given by Max Strauss and William Lewis in 1916. जो 1889 में Arrhenius ने concept दिया था, उसमें भी उसने collision of molecules के base पर ही अपनी equation derive की थी, that is K is equal to A, वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी हम उसको कहते हैं, अरेनियस फैक्टर भी है, एंड ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टेम्परेचर डिपेंडेंस. क्लियर? एंड उस इक्वेशन से भी अगर हम रेट और फ्रीक्वेंसी कोलिजन्स को लाइक उनकी अगर फ्रीक्वेंसी कोलिजन्स आपको पता है एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पता है, यू कैन इजीली फाइंड के फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. क्लियर? But actually later it was the entire theory was proposed by these two scientists, and it is actually based on kinetic theory of gases, जिसके according particles को एक hard sphere consider किया जैसे kinetic theory of gases में है. So according to it, the molecules of reactants are assumed to be hard spheres, and the reactions are assumed to occur only when these spheres collide with each other. ओके, तो कोलिजन्स जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है कि गैसेस पार्टिकल जब रेंडमली मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर, वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. तो इन सेम वे यू कैन से these are hard spheres. When they collide with each other, then only products are formed. Suppose if we consider a reaction A plus B giving products, so according to this collision theory of reactions, rate can be calculated by this formula. Rate is equal to ZAB. ZAB is there collision frequency of reactant molecules A and B. और दूसरा जो फैक्टर है जो आपने अरेनियस इक्वेशन में भी देखा था, E is equal to E raised to the power minus EA over RT. EA एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म होल, it is actually depicting the fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy. मतलब जिन molecules की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या हायर है, वो फ्रैक्शन, टोटल मॉलिक्यूल्स का उतना फ्रैक्शन, ये एक्सपोनेंशियल टर्म डिपिक्ट कर रही है, सेम इन अरेनियस इक्वेशन एज वेल एज इन दिस कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो कांस्टेंट का है, वहां पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर को अरेनियस ने ए कांस्टेंट लिया था, और यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको जो कांस्टेंट वेल टर्म मिल रही है दैट इज ZAB, एंड दिस Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. A भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने A और B रिएक्टेंट के लिए, अदरवाइज सिंपली Z कैन आल्सो बी रिटन, एंड दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर. जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितने इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स में. दैट is you can say important to know, and it remains actually constant for a particular reaction. So that is why it is A भी वहाँ पे constant होता है अरेनियस फैक्टर में, that is the collision factor,
और यहाँ ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है विच कैन बी defined as number of collisions per second per unit volume of reacting mixture. But actually this equation was satisfied in case simple atomic species are participating in a reaction. But suppose if some complex molecules are taking part as reactant molecule, तो rate इस formula से थोड़ी सी मतलब deviate हो जाती है, मतलब it's not exactly equal to this value. तो उस केस के लिए मैक्स ट्रॉड्स एंड विलियम लुइस ने एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया इस इक्वेशन में, दैट इज एक्चुअली they propose that only those molecules collide effectively which have sufficient kinetic energy जो थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, एंड एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. मीन्स मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड कर रहे हैं तो किस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेड हो कि वो फैसिलिटेट कर पाए रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करना एंड प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड्स को फॉर्म करना. फॉर एग्जांपल हियर वन दिस रिएक्शन इज गिवन इन योर बुक एज वेल एज ब्रोमोमीथेन CH3Br. This is bromomethane. When it is treated with this NaOH in aqueous medium actually, या KOH, मतलब OH आयन चाहिए आपको aqueous medium में. और ये रिएक्शन एक्चुअली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस में भी है. व्हेन वी नीड टू प्रिपेयर अल्कोहल्स बनाने के लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स को एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं. तो एक्चुअली इस रिएक्शन में हमें ये जो ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन एटम है, दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस OH ग्रुप. यही एक तरह का सब्स्टिट्यूशन करवाना है कि आपने OH आयन को Br से रिप्लेस करना है. ठीक है, तो इस रिएक्शन में अब ये देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये जो ब्रोमोमीथेन है ये इस तरह से अगर ओरिएंटेड है दैट इट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन विद दिस एंड ब्रोमाइड फॉरवर्ड है और इधर सामने OH आयन है, तो ये दोनों ही एंड जो है वो नेगेटिवली, मतलब OH आयन इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज एंड ब्रोमीन एटम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज हेलो एल्केन्स में, और जो हेलोजन ग्रुप होता है दैट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन. तो ये नेगेटिव पोल जो है इस मॉलिक्यूल का, अगर उस तरफ से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है या इस OH आयन की तरफ अट्रैक्ट, मतलब दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अब दोनों एंड्स अगर नेगेटिव हैं देन दे विल रिपेल ईच अदर, तो दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन विल बी इम्प्रॉपर. तो ऐसे मॉलिक्यूल चाहे कोलाइड कर रहे हैं, इनमें एनर्जी भी सफिशिएंट है, मींस दे हैव एनर्जी वैल्यूज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, बट स्टिल दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट्स. रीजन बिहाइंड orientation of the molecule bromomethane was not proper. Now proper orientation क्या होगी, जिसमें ये ब्रोमाइड आयन की जगह ये जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, इट शुड यू कैन से अप्रोच टूवर्ड्स, मतलब इस एंड से अप्रोच करे अगर मॉलिक्यूल, या OH आयन जो है वो बैकवर्ड अटैक, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए. ईदर दिस एंड विल अप्रोच टूवर्ड्स OH आयन, तो आप इसमें यहाँ पर Br को यहाँ बना सकते हो बैकवर्ड और OH इस तरफ, तो ये कार्बन का पॉजिटिव पार्ट जो है इस मॉलिक्यूल का दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स OH आयन. ऑब्वियसली वन अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर, और अगर ये ओरिएंटेशन इसकी इसी तरह से है तो OH आयन विल अटैक फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? तो मींस मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ओरिएंटेड इन सच अ वे टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन केमिकल रिएक्शन. तो इसको हम कहते हैं एक तरह का स्टेरिक फैक्टर. स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, इसको हम मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड से, मतलब सेंट्रल एटम जिस पर की रिएक्शन होनी है, एक्चुअली देखो बॉन्ड यही वाला ब्रेक होना है ना कार्बन और ब्रोमीन का, और न्यू बॉन्ड भी यही फॉर्म होना है C एंड OH, ये तीनों बॉन्ड्स तो इंटैक्ट हैं. बट अब आप ये सोचो जिस एटम पे अटैक हो रहा है अटैकिंग स्पीशीज का, वो ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड है. स्टेरिकली हिंडर्ड मतलब ये है कि ये जो ग्रुप्स है, अगर ये H की जगह और बड़े बड़े ग्रुप्स हो, एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं ना, CH3 सपोज अगर ये टर्शियरी कार्बन ग्रुप होता, तो इसलिए जो टर्म है स्टेरिक फैक्टर का मतलब है कि इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, देन ओनली ब्रेकिंग ऑफ earlier bonds and formation of new bonds take place.
Hence, in this theory of chemical reactions, one more factor which is known as probability or steric factor. Steric का मतलब होता है 3 dimensional जो arrangement है, उस वो किस तरह का ओरिएंटेशन हो उसके अंदर कि पार्टिसिपेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाए और कोलिजन्स इफेक्टिव हो जाए. सो हेंस अ प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर व्हिच इज represented by the symbol P is introduced in this equation, which accounts for effective collisions having properly oriented molecules. ठीक है, तो now this equation for rate according to collision theory becomes rate is equal to P. बाकी इक्वेशन आपकी एज इट इज हमने जो पहले देखी, z जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी. तो दिस इक्वेशन इज नाउ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मीन्स जो स्टेरिकली हिंडर्ड मॉलिक्यूल हैं, जिनपे सेंट्रल एटम जिसपे बॉन्ड्स बनने हैं न्यू, वो ऑलरेडी उसमें इतने बॉन्ड्स हैं कि उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से अगर होगी, इफेक्टिव कोलिजन्स तभी हो पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. तो ये फैक्टर तब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जब मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चरल जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं. सिंपल एटॉमिक स्पीशीज अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो एटम्स के अंदर ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाली प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज ऑलरेडी दे आर एटम्स, कोई केमिकल बॉन्ड न्यू पुराना बना नहीं हुआ, जस्ट न्यू बनने हैं. तो इन दैट केस that steric factor has no significance, but for complex molecules having structural जिनके अंदर ये directional bonds already बन चुके हुए हैं, जैसे कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिस ब्रोमोमीथेन, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें स्टेरिक फैक्टर इन्वॉल्व हो चुका है, वहां पर आपको ये फैक्टर T जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है रेट फाइंड करने के लिए. एक्चुअली दिस थ्योरी इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट इन योर बुक. इसके बेस पे कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया और ना कोई न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट दिस टॉपिक इज गिवन इन योर बुक, सो वी हैव डिस्कस्ड हियर. few numericals I have taken for based on temperature or Arrhenius equation. This is very important part of the chapter I am telling you, this one and rate law. दोनों के बेस पे ही आपको numericals they are very important. First question is 4.8 actually NCERT question number है. The rate of the chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. 298 Kelvin से 10 Kelvin अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एक रिएक्शन में, तो रेट बिकम्स डबल. कैलकुलेट EA. तो अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, बट इट इज गिवन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल. तो रेट और रेट कांस्टेंट बेटा डायरेक्टली एक दूसरे को, मतलब रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ. तो यू कैन फाइंड राइट दैट. अभी पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला फॉर दिस रिएक्शन जो हमने अरेनियस इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के लिए सॉल्व किया था, दैट फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड. log of K2 over K1 is equal to activation energy over 2.303 R and temperature T2 minus T1 over T1 T2. ये entire equation we need to use. अब यहाँ पे K2 will be equal to twice of K1, मतलब क्योंकि reaction rate double हो रही है तो K की value भी double होगी. तो here K2 is equal to 2K1 twice of K1. T1 298 Kelvin है, T2 आपका 10 उसमें ऐड कर दो 308 केल्विन. R की वैल्यू 8.314 ही यूज करनी इस चैप्टर में इन SI यूनिट्स. तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज विल हैव log of 2, K1 कैंसिल हो जाएंगे, तो log of 2 विल बी देयर इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 एंड T2 माइनस T1 ओवर T1 T2. ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने. उसके बाद आपको EA फाइंड करना है. For finding EA, we need to put the value of log 2, that is 0.3010. So after putting all these values, EA will come out to 52897.7 joule per mole, and it can also be written in kilojoule, क्योंकि generally जब ये चीज याद रखना बेटा, इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में whenever EA value will be given, okay,
तो जनरली किलो जूल्स में दी होती है क्योंकि लार्ज वैल्यू होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी की, एंड इट इज गिवन इन किलो जूल्स पर मोल इन न्यूमेरिकल व्हेन समथिंग अदर इज टू बी कैलकुलेटेड ना। आप आंसर जूल पर मोल तक भी छोड़ सकते हो, उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, किलो जूल में कन्वर्ट करो ना करो, बट क्वेश्चंस जब आपको ईए ऑलरेडी गिवन होता है एंड समथिंग एल्स इज टू बी फाइंड आउट, इन दैट केस ऑलवेज see the unit given, generally किलो जूल में होगा, you need to convert it into joule क्योंकि आपको ऐसा यूनिट्स में यूज करना है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके आपने यूज करना है। और ये चीज बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, और अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया ना तो फिर मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे हाफ, और वट एवर सम अदर वैल्यू पुट करने के मार्क्स हाफ, एक नंबर से ज्यादा नहीं मिलता अगर आप ईए को कन्वर्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, here the activation energy is 209.5 kilojoule for this decomposition of HI at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy. Can anyone tell what is to be calculated here? Yes, ma'am, please allow them to unmute. E raised to power minus EA upon RT. Yeah, very good. This जो एक्सपोनेंशियल टर्म है आपकी, वो आपको फाइंड करनी है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, हमें e रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT, जस्ट वेट, दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, मैंने आपको उस दिन भी जब हम ये अरेनियस इक्वेशन के जो भी लाइक टर्म्स हैं, K is equal to AE minus E over RT. At that time, I told you this exponential term actually corresponds to the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy. And this can be represented by this term NE over NT. ये fraction है, NE यहाँ पे है number of molecules having energy equal to or greater than activation energy, and NT means total number of molecules. Clear? तो फ्रैक्शन लेना है आपने, तो Ne over Nt will be the fraction of these molecules, and according to Arrhenius equation this fraction is equal to e raised to the power minus Ea over Rt. अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको हम अगर log ले लें तो we'll have this value log Ne over Nt is equal to minus EA over 2.303 RT. वैसे माइनस E over RT लिख सकते हो, 2.303 log की तरफ मल्टीप्लीकेशन में होता है, बिकॉज पहले हम नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग को फिर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल गेट दिस 2.303 ऑफ log Ne over Nt, बट फॉर दिस हमें फ्रैक्शन सिर्फ Ne Nt निकालना है, तो 2.303 कैन बी taken here in denominator. So this will be the formula after taking log of this first equation. Okay, now you have the value of activation energy and temperature. Put these values here, minus 209.5, और यहाँ पे फिर से आपको एक चीज ध्यान रखनी बेटा, किलो जूल में गिवन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, so that you need to convert into joule. After that divide it with 2.303, R 8.314, टेम्परेचर 581. ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 18.8323. क्लियर? अब आपको ये वैल्यू जो आई है ये लॉग ऑफ ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, आपको तो नॉर्मल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो दैट कम्स आउट टू बी एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू. अब एंटी लॉग इसका निकालने के लिए आपको सबसे पहले, ये नेगेटिव साइन में एंटी लॉग्स नहीं होते, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 11th में भी आपको बताया था मैंने, आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो, माइनस 18 प्लस 0.83 या माइनस 18 माइनस 0.8323, फिर प्लस 1 माइनस 1 कर दो साथ में, तो माइनस 1 और माइनस 18 हो जाएगा आपका माइनस 19, और ये जो वैल्यू है इसको प्लस 1 में से जब माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगा उसका एंटीलॉग आपको बुक से देखना है, और ये जो माइनस 19 टर्म बन गई है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर्स. तो हियर ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 पावर आ जाएगा, और जो यहाँ पर 1 में से सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू बचेगी 17 समथिंग, 168 समथिंग आएगी 0 पॉइंट, उसका जब आप एंटीलॉग टेबल में चेक करोगे तो वो 1471 होगा. उसमें आपको फर्स्ट डिजिट के बाद
अपने आप डेसिमल प्लेस करना है, डेसिमल नहीं मिलेगा लॉग टेबल में. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू चेक एंटीलॉग वैल्यूज, तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना होता है, बिकॉज ऑल एंटीलॉग वैल्यूज आर फॉर आफ्टर डेसिमल नंबर्स. मतलब ये 18 19 जो भी डेसिमल के पहले नंबर है ये आपको नहीं मिलेंगे लॉग टेबल. आपको एंटीलॉग टेबल में 0 पॉइंट आगे की ये जो वैल्यूज होती हैं 4 यू कैन फाइंड इन एंटीलॉग टेबल. और ये पार्ट जो होता है चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो उतने ही 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 10⁻⁻19 पावर हो गया. और 19 कहाँ से आया? +1 -1 आपको इस पूरे फैक्टर में ऐड कर देना है. ठीक है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट यू कैन फाइंड इट्स वैल्यू इन एंटीलॉग टेबल. तो 1.471 10⁻⁻19. नो यूनिट विल बी देयर बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. वैसे ही ऑलरेडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो नो नीड टू. और इवन अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं. EA इज जूल पर मोल. दिस आर की जो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, और ये टेम्परेचर केल्विन. तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, जूल पर मोल कैंसिल हो गया. सो नो नंबर विल बी, no unit will be there for these fraction of molecules. ठीक है, so this is how you can calculate fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy by using only the exponential term from Arrhenius equation. Next question. The rate constant for decomposition of a hydrocarbon is 2.418 10⁻⁻5 per second at 546 Kelvin. If the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value of pre-exponential factor? Yes, now what is to be calculated here? मैम A. A is to be found. ठीक है, और आपको गिवन है रेट कांस्टेंट K and energy of activation and temperature. All these three terms are given and you need to find A. अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, K2 K1 वाला इक्वेशन नहीं यूज करना. वो तभी यूज करना है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे K का रिलेशन गिवन है. तो हेयर ओनली वन इक्वेशन जो हमने लॉग फॉर्म में बनाया था दैट यू नीड टू यूज. वहां पे हमने नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT यूज किया. बट उसको अगर हम log to the base 10 में कन्वर्ट करेंगे तो विल फाइंड दिस वैल्यू और दिस इक्वेशन. log K is equal to log A minus EA/2.303 RT. ये थोड़े बहुत बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे कि एक उस अरेनियस इक्वेशन की कितनी सारी डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं. व्हेन A is to be calculated तो आपको ये फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, जब आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉग लेके उसको यूज करना है. एंड जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए K का रिलेशन आपने या K फाइंड करना है या टेम्परेचर इटसेल्फ फाइंड करना है, देन यू नीड टू रिलेट इसी इक्वेशन को जो 1 और 2 करके T1 T2 वाला फॉर्मेट वो हमने यूज करना है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड विच इक्वेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आपको log A के लिए इक्वेशन दैट वुड बी log K plus EA/2.303 RT. Now put the values. Log of K value is 2.418 10⁻⁻5. EA आपका अगेन 179.9 किलो जूल है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. एंड एक R की वैल्यू 8.314. K is temperature is 546 Kelvin. All values are to be put like this and then log of 2.418 आपको टेबल से देखना है और ये 10⁻⁻5 का लॉग जो है वो -5 हो जाएगा. तो -5 प्लस log of 2.418 ये सॉल्व करने के बाद -4.6184 वैल्यू आएगी. मीन्स इसका लॉग टेबल से देखना है और ये इसकी जो वैल्यू टेबल में मिलेगी उसको डेसिमल के बाद में लिख के, ये डेसिमल से पहले 1 नंबर है ना, 1 डिजिट है, तो 0 पॉइंट समथिंग विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टर्म. इसका लॉग -5 हो जाएगा. तो -5 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी, -5 प्लस दिस वैल्यू that you will solve to find this. तो ये -4.6184 आ गया और इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो this comes out to be 17.29. So this positive term and this is negative term. After solving 12.5916 is the term for log of A.
अगेन ए फाइंड करना है तो एंटी लॉग लोगे आप, ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 12.5916। अगेन बेटा यहाँ पर 12 जो है दैट विल बी used in you can say apply power of 10, और इस वैल्यू का लॉग एंटी लॉग टेबल में आपको 0.5916 का एंटी लॉग चेक करना है, तो दैट वैल्यू विल बी टेन रेज टू द पावर 12 प्लस साथ में लाइक